There is a sensational twist in the Uttar Pradesh alleged forced conversion racket. The Uttar Pradesh police suspect there is a bigger racket operating across multiple states, including in the northeast. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has ordered the imposition of National Security Act and Gangster Act against the two Muslim clerics arrested by the anti-terror squad from Delhi's Jamia Nagar on Monday. हम अपने बच्चे की वापसी किसी भी तरीके से हो जाए। A helpless mother's appeal. सर बेटे का पता नहीं हमें कहाँ है। आज सुबह गया है वो, पहले तो 20-21 दिन में तो परसों आया था रात को। A desperate father narrates his ordeal. UP conversion racket has not only unearthed a possible larger conspiracy, but also brought the prolonged struggle of victims' parents to the fore. 22-year-old Manu Yadav, now named as Abdul Manan, was studying in Noida Deaf Society. His parents allege that he was lured for conversion for a job in 2017. Since then, the parents have been juggling between offices just to find out who brainwashed their deaf child. हम हर जगह गए, गुड़गांव हर पुलिस के पास गए, डीसी के पास गए, कमिश्नर के पास गए. Abdul is not the only one. There are several others. बहुत लोग हैं, लिस्ट है मेरे पास, 10 बंदों की लिस्ट है मेरे पास जिन्हें कन्वर्ट हुआ और उससे पहले कन्वर्ट हुए. कुछ एक को जानता हूँ, नंबर जानता हूँ. The plight of the kin of victims came to light after UP anti-terror squad arrested two accused, Muhammad Umar Gautam and his associate Mufti Qazi Jahangir Kazmi from Delhi's Jamia Nagar area on Monday for allegedly converting poor individuals and children with speech and hearing disabilities to Islam. The two accused have been sent to judicial custody till 3rd of July. हम लोग उन दो व्यक्तियों की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए हमने अप्लाई कर दिया है. इसकी विवेचना चूँकि बहुत वृहद है और कई प्रदेशों में फैली हुई है, तो हमारी पुलिस अन्य प्रदेशों के पुलिस के साथ भी संपर्क में है, अन्य एजेंसियों के साथ भी संपर्क में है. UP Chief Minister Yogi Adityanath has ordered to impose NSA and Gangster Act against the two arrested. He also ordered to seize the properties of the accused in the case. पकड़े गए धर्मांतरण के षड्यंत्रकारियों से यह स्पष्ट हो गया कि इनका षड्यंत्र कितना गहरा, व्यापक, घिनौना और राष्ट्रव्यापी है. The politics is raging over the case as opposition claims it is nothing but a tactic of the government to hide its failures. अगर उसके पीछे कोई घटनाएं घट रही हैं तो कहीं न कहीं सरकार के कुछ लोग उसमें शामिल हैं. उत्तर प्रदेश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इसकी जांच होनी चाहिए. जांच में जो तथ्य हैं पूरी तरह से जनता के सामने आने चाहिए. This deep-rooted conspiracy of mass conversion of especially able people is not only limited to locals or NGOs only. Investigation reveals that they were getting funds from foreign countries as well. With Shivendra Srivastav in Lucknow, Bureau Report, India Today. And let's quickly cut across to Prashant Kumar, Additional Director General, Law and Order of the Uttar Pradesh Police, who joins me on the show. Mr. Kumar, what is the evidence that there is a bigger nexus and an organized racket across states and proof that money or fear was used to force people to convert? आज आपको पता होगा कि ये दो व्यक्ति जो कल हम लोगों ने गिरफ्तार किए थे, उसको कोर्ट ने हमें 7 दिन के रिमांड्स पे भेजा है और उसमें हम लोगों ने कोर्ट के सामने पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिसके आधार पर ही पुलिस कस्टडी रिमांड हम लोगों को दी गई है. विवेचना के हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, whatever is there to diverge, I will tell you. Rest other things we will submit in the court of law. तो जहां तक इसकी बात है कि हमारे पास इसके पुख्ता रिकॉर्ड हैं कि ये जो कन्वर्शन है जी, ये ल्योर करके कराया गया है, पैसे के लिए कराया गया है, नौकरी के लिए कराया गया है, शादियों के लिए कराया गया है और
ऐसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को टच करके कराया गया है, जिनको इन चीजों की अत्यंत आवश्यकता है और नॉर्मल तरीके से वो सोसाइटी में चीजें नहीं हो सकती। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये भी हो सकता है कि जिस तरह से चीजें हमारे पास एविडेंसेस कलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये रैकेट और भी बड़ा हो। तो जो आप जिक्र कर रहे हैं कि ये रैकेट और राज्यों में भी हो सकता है, तो आप और राज्यों की पुलिस से क्या संपर्क में हैं, जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, या फिर क्या केंद्र की मदद या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की सहायता की आवश्यकता होगी? विल यू नीड टू रोप इन द एनआईए और सेंट्रल एजेंसीज? नहीं, हमें जहां जहां के अभी तक रिकॉर्ड मिले हैं उसके हिसाब से विभिन्न राज्यों में भी है और प्रदेश में भी है, और हम लोगों ने कुछ ही डेटा अभी एनालाइज किए हैं, उसके हिसाब से फीमेल्स का परसेंटेज कन्वर्शन का ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल्स। सो ये चीजें सभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के पार्ट्स हैं जो कि ओवरनाइट नहीं हो सकती, और जिस तरह का मनी इसमें इन्वॉल्व है, और अब तो जो कन्वर्टीज हैं उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार भी सूचनाएं दे रहे हैं, और आपने देखा होगा कि वो आपके सामने भी मीडिया चैनल्स के सामने भी ये बातें बोल रहे हैं। कुछ लोग डर रहे हैं वो हमें डायरेक्ट सूचना दे रहे हैं। इसके अलावा हम सभी अपने संबंधित पुलिस फोर्सेस के साथ मिलके एविडेंस शेयर करके अच्छी कार्रवाई करेंगे, और अन्य जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं जिससे हम लोग लीगली मदद ले सकते हैं, हम सभी एजेंसियों को से लगातार समन्वय बना के इस पूरे गैंग का और पर्दाफाश करेंगे। आपने एक महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जब आपने कहा कि महिलाओं का धर्मांतरण ज्यादा हो रहा है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कितना ज्यादा है और कितने केसेस में आपने देखा है अभी तक की जितनी जांच हुई है पुरुषों की तुलना में, और ऐसा क्यों है? अभी तो बहुत कम डेटा हमने एनालाइज किए हैं, लेकिन जो अभी तक की हम लोगों ने कुछ 400 के करीब डेटा एनालाइज किए हैं, उसमें परसेंटेज फीमेल्स का 55 है एज कंपेयर टू 45% ऑफ मेल्स। ठीक, so 55% more women have been converted according to the data that you've analyzed so far, but you've also been talking about foreign funding. विदेशों से इसके लिए पैसा आ रहा है। शुरू में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की आईएसआई की इसमें भूमिका थी, उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? नहीं, उसके बारे में अभी ऐसी कोई मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट एंगल, बट लॉट ऑफ मनी हैज कम फ्रॉम अब्रॉड एंड दैट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, and at the same time a lot of money is being received from the different part of the country also. Okay, so as you investigate foreign funding and money trail, what can you tell us about other police forces and other parts of the country where investigations are going on and are more arrests on the cards? जी, अवश्य अगर इसमें जिनका भी इन्वॉल्वमेंट आएगा, आपको पता होगा कि हमारे राज्य सरकार ने इस रैकेट में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। Mr. Prashant Kumar, Additional Director General of the Uttar Pradesh Police for the moment, many thanks for joining me. So the Uttar Pradesh Police insists they are carrying out an investigation on the basis of evidence that's been gathered so far in this case. So 1,000 cases, according to the police, they've looked at 400 cases. Other state police forces are also being roped in. We'll track that story very closely. But that is all I have time for on India First this evening. Many thanks for watching. For all the latest news and updates, log on to indiatoday.in. You can also download the India Today app.